Hi, as requested, I thought of making a video on the topic duties of director. Hope this video will help you and clear your doubts. So, before wasting any time, let's get started. Duties of director, as you can see on the screen. Director appointed in a company have various duties to perform. The foremost duty of the directors is to act honestly and diligently and in the best interest of the company so that the objective of wealth maximization is achieved for the stakeholders. So, the first and foremost thing is director is appointed in a company to perform various duties, but first of all he should act honestly एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. मतलब सिर्फ कंपनी के लिए काम करना चाहिए, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं काम करना चाहिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए. एंड वाई द कंपनी एंड सो दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अचीव्ड, ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, वेल्थ जनरेट करे. एंड स्टेक होल्डर्स जो है द इन्वेस्टर्स, सपोज इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन अ कंपनी, मैंने अपना पैसा लगाया है उसमें, सो आई विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट द कंपनी टू परफॉर्म वेल एंड गिव मी अ गुड रिटर्न. एंड हु विल मैनेज इन द कंपनी? द डायरेक्टर्स. सो डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो देखिए कि कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है एंड ही शुड एक्ट ऑनेस्टली. एंड अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना है, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करना है, कंपनी की ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और ड्यूटी ऑफ अ डायरेक्टर. नेक्स्ट, in no case any business opportunity which falls within the ambit of the company be exploited by the directors for their own benefit. So यहाँ लिखा हुआ है कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए. डायरेक्टर्स अपने बेनिफिट के लिए कुछ ना करें, कंपनी के बेनिफिट के लिए जो सही है वो उन्हें करना चाहिए. Okay, all right. Before getting ahead, I would just brief you the types of directors: executive director, non-executive directors. So, executive directors में दो parts है: managing director, whole time director. Non-executive directors में independent director, nominee directors. फिर आते हैं additional directors, alternate directors, casual vacancy directors, women directors, small shareholder directors. Just because this topic is about duties of director, I am not getting into the detail, and I'll just directly switch to the topic duties of directors. I just gave an overview of the types of directors because आपको वो भी जानना चाहिए कि directors कितने टाइप के होते हैं. एंड आप नोट डाउन भी कर लो, दिस विल हेल्प यू. एंड आपको फिर इसे यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट. आप अगर समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप एग्ज़ाम्स में लिख पाओगे. Duties as per section 166. Duties of director, more particularly statutory duties, have been prescribed for the first time in the statute. Section 166 specifies the following duties which are required to be accomplished by a director. These are the compulsory duties which have to be exercised by the director. So ये इन्हें करना ही है पड़ेगा, there is no other option. Compulsory है. He shall act in accordance with the articles of the company, subject to the provision of the Companies Act 2013. So, Article of Association क्या है? और Article of Association specifies the regulations for a company's operation and define करती है company's purpose. आप समझ लो ये एक यूज़र मैनुअल है जो डिफ़ाइन करती है कि कंपनी में क्या रेगुलेशंस स्पेसिफाई करता है कि कैसे कंपनी ऑपरेट होनी चाहिए एंड क्या पर्पस है कंपनी का. ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है. एंड द डायरेक्टर हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. सो आर्टिकल्स में ये बताया रहता है कि डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए, कैसे अपॉइंटमेंट वगैरह. सो उसी अकॉर्डिंग जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वैसे ही काम करना चाहिए. Next, he shall act in good faith in order to promote the object of the company for the benefit of its member as a whole. Further, he shall act in the best interest of the company, its employees, the shareholders, the community, and for the protection of environment. So, director वही चीज़ बोला हुआ है कि उन्हें अपने
कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करना चाहिए. सपोज कंपनी इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पज़ के लिए कंपनी बनाई गई है, सो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि अपने अकॉर्डिंग कि अपने फ़ायदे के लिए हम कुछ देख रहे हैं. इसीलिए लिखा हुआ है दैट इट शैल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. कंपनी के एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ के लिए भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर यू, एंड द शेयर होल्डर्स, क्योंकि पैसा लगाया है शेयर होल्डर्स ने, द कम्युनिटी, एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. डेफिनेटली अगर इफ़ इट्स हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट. सो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चलना है, एंड बाकी हर चीज़ ध्यान रखते हुए ही शैल एक्ट इन गुड फेथ. नेक्स्ट, he shall exercise his duties with due and reasonable care, skill, and diligence, and shall exercise independent judgment. So the director has to exercise his duties with due and reasonable care. पूरे ध्यान से काम करना है, एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट देना है. ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया उस हिसाब से करना, अपना ओपिनियन देना है, अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट देना है. एंड he shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts or possibly may conflict with the interest of the company. So ऐसा कुछ नहीं होना है जिसमें इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो, जो कि कंपनी के फ़ायदा के नहीं, उनके फ़ायदे के लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो वैसा कोई ट्रांजैक्शन में इन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिससे इन्हें तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन कंपनी को नुकसान हो रहा है. सो ऐसा काम नहीं करना है. ही शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन इन विच ही मे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट. Right? Next, he shall not achieve any undue gain or advantage either himself or to his relative partners or associates. In case such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company. So, अगर उन्हें कोई ट्रांजैक्शन से कुछ फ़ायदा हो रहा है, या फिर उनके रिलेटिव या पार्टनर्स या एसोसिएट्स को कोई फ़ायदा हो रहा है, अगर ये डिफ़ॉल्ट उन्होंने किया है, दैन सपोज 50 लाख का गेन हुआ है, सो ही हैज़ टू पे दैट अमाउंट टू द कंपनी. सपोज 50 लाख का फ्रॉड उन्होंने किया है, 50 लाख कंपनी को उन्हें देना पड़ेगा. ये दिस इज़ अगेंस्ट द रूल्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. सो ही शैल नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज आइदर हिमसेल्फ. अपने लिए भी नहीं हो सकता, रिलेटिव के लिए भी नहीं हो सकता, पार्टनर के लिए भी हो नहीं सकता है, और एसोसिएट के लिए भी नहीं हो सकता है. सो अगर ऐसा उन्होंने किया है, देन ही हैज़ टू रिफंड द होल अमाउंट ऑफ गेन टू द कंपनी. नेक्स्ट, he shall not assign his office, and if any assignment is so made, it shall be void. Suppose you are selected as a director of a company, you are appointed as a director of a company, and आप फिर अपनी जॉब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप अपने दोस्त को असाइन कर दिए. दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. यू कैन नॉट असाइन इट टू समवन एल्स. यू हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी when you are appointed as a director. So the assignment of office has been made invalid because of the fact that the shareholder have elected a particular person as director for the management of the company. If such person assigns his office to some other person, the shareholder may not have faith in the other person, and therefore a person who does not command the faith of the shareholders cannot be given responsibility to manage the company. सो द थिंग इज़, शेयर होल्डर्स ने आपको अपॉइंट किया, राइट, एज ए डायरेक्टर, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप अच्छे से मैनेज करोगे कंपनी को, एंड कंपनी की ग्रोथ एंड इस डेवलपमेंट में आप पूरा कोऑपरेट करोगे, एंड अच्छी कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी. एंड आपने जिसको डेलीगेट किया है, द शेयर होल्डर्स डजंट नो द पर्सन, एंड दे डू नॉट हैव एनी फेट ऑन दैट अदर पर्सन. सो दैट्स द रीज़न इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि आप अपना काम किसी और को डेलीगेट करो, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने आपको सिलेक्ट किया है एज ए डायरेक्टर. In other words, it is required of the original director to carry out his duties of directorship on his own without assigning them to some other person. Delegation of duties to other staff members wherever permitted is not akin to assignment of office. So, ओरिजिनल डायरेक्टर जो इनको शेयरहोल्डर ने अपॉइंट किया है, उन्हें ही काम करना चाहिए, और किसी और को वो अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. दिस इज इट. एंड देन लास्ट लाइन हियर सेज दैट वेरेवर परमिटेड, मतलब जहाँ पे बोला हुआ है कि आप अपना काम
डेलीकेट कर सकते हैं अदर स्टाफ मेंबर्स को, वहाँ देन इट्स फाइन। बट जहाँ पे नहीं बोला गया है, जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर एंड यू आर डेलीगेटिंग इट टू अदर स्टाफ मेंबर्स और योर फ्रेंड हु इज़ वर्किंग इन द सेम कंपनी, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उन डायरेक्टर को खुद ही अपना काम करना है। सो एंड द लास्ट लाइन सेज कि आप स्टाफ मेंबर्स को डेलीगेट कर सकते हैं जहाँ पे परमिटेड है, राइट। The next, punishment for not accomplishing statutory duties. If any director of the company contravenes the provision of section 166, such director shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 5 lakh. So if the director is not complying with the duties, then he shall be punishable with fine जो कि 1 लाख से minimum 1 lakh which may extend to 5 lakh. So here, as you can see on the screen, there is a summary of the topic duties of director, and after understanding in detail, you can just go through this part before appearing for your exams, and it will be helpful. Next, some other duties. They are described as under: to file various documents. It is the duty of director to file various documents required to be filed with the registrar within the specified time limit. Similarly, wherever required, the requisite documents must also be filed with other statutory bodies. So, director का responsibility है जो भी documents फाइल करना है ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो उन्हें फाइल करना है टाइमली। इफ़ वी आर नॉट फाइलिंग इट विद इन टाइम, बहुत फ़ाइन लगना है, ठीक है। तो फाइन्स अवॉइड करने के लिए आप विद इन टाइम लिमिट करो, सिर्फ जितना ROC फीस लगना है वही लगेगा। और अगर आप डायरेक्टर टाइमली फाइल नहीं करता है तो उन्हें कंपनी को उनके फॉल्ट की वजह से फाइन भरना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो द कंपनी द डायरेक्टर हैज़ टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स विद इन टाइम। एंड अगर कोई और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को भी मतलब और भी कुछ कंप्लायंसेस है कंपनीज़ के, दैट ऑल्सो द डायरेक्टर हैज़ टू फाइल विद इन टाइम। नेक्स्ट, टू कन्वेन द जनरल मीटिंग as and when required, annual general meeting and extraordinary general meeting needs to be convened by directors. So director का responsibility है कि annual general meetings या जब भी extraordinary general meetings की requirement है वो होनी चाहिए। So ये भी responsibility है directors का। Next, to attend board meetings. Board meeting is the platform where collective decisions are taken for managing the company's profitability. It is statutorily required of a company to hold at least 4 board meetings every year, and the gap between 2 board meetings must not exceed 120 days. So साल भर में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए एंड 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज का गैप नहीं होना चाहिए। आप 4 से भी ज़्यादा ले सकते हैं बोर्ड मीटिंग्स। However, a company may, as per the exigencies, hold more meetings than statutorily required, and every director is duty bound to attend them. So सारे directors को attend करना है meeting, because this board meeting is a meeting of the director, right? So obviously सारे directors को ही attend करना है ये meeting, they cannot skip. A director though may not attend all the board meetings held in a year, but in case he remains absent from all such meetings held within a period of 12 months, either with or without seeking leave of absence, he shall be deemed to have vacated his office. अगर आप एक मीटिंग नहीं कर रहे हो तो चल रहा है, बट अगर आप सारे के सारे मीटिंग स्किप कर रहे हो, आप आ नहीं रहे हो, देन व्हाट आर यू देयर इन द कंपनी फॉर, राइट? आप फिर क्या मैनेज कर रहे हो? आप मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हो, फिर आपका क्या ही काम। सो इट विल बी डीम्ड कि आपका सीट अब नहीं रहा, यू आर नो मोर अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इट्स डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस, राइट। नेक्स्ट, टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट. In the ordinary course, it is required of a director that his interest should not clash with the interest of the company. That is, he should not get himself benefited from a transaction, the profit of which belongs to the company. So, कंपनी को अपना इंटरेस्ट, अगर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है तो कंपनी डायरेक्टर को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। अगर वो
कंपनी के बेनिफिट नहीं अपने बेनिफिट के लिए है तो उन्हें बोर्ड मीटिंग में ये डिस्क्लोज कर देना चाहिए. And if it happens that and the director gets interested in a transaction belonging to the company, it is his duty to disclose such interest at the very first board meeting he attends after becoming interested in a transaction. Suppose आज मैं इंटरेस्टेड हुई कोई ट्रांजेक्शन में, if I am a director of a company, so the very next board meeting जो वो इंटरेस्ट मेरा जिस ट्रांजेक्शन में है and I need to disclose it in the first board meeting itself. Thereafter, such interest should be disclosed in the first board meeting held in every financial year. मतलब हर साल के फाइनेंशियल ईयर में वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है डायरेक्टर को. इन केस देर इज एनी चेंज इन द डिस्क्लोजर ऑलरेडी मेड बाय द डायरेक्टर, सच चेंज नीड्स टू बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ अदर डायरेक्टर्स इन हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विच ही अटेंड्स आफ्टर ऑकरिंग सच चेंज. सो बाय चांस इफ देर आर चेंजेस इन द ट्रांजेक्शन या कुछ भी इंटरेस्ट में चेंजेस हुआ है, सो मुझे वो भी लाइक द डायरेक्टर हैज़ टू inform the other directors in the next board meeting, first board meeting of every financial year, right? A detailed disclosure of interest and punishment for non-disclosure is discussed at the appropriate place. So अगर नहीं डिस्क्लोज करते तो उसके लिए भी पनिशमेंट है, that is discussed and later on that you may mention it also here, because उससे क्या होगा ना, like the examiner will be more happy because you have a lot of knowledge about this topic, so you will get more marks. होता है impressive if you write something more than what's required. So sometimes the examiners are like it differentiates you from the normal candidates who just write the headlines and just a normal description, right? So if you write it, it will help. Next, to approve the annual financial statements. Before seeking auditor's report, the annual financial statement, that is the balance sheet, statement of profit and loss, cash flow statement, etc., including consolidated financial statements, if any, are required to be approved by the board, by the directors. So directors obviously बिफोर ऑडिटर अपना रिपोर्ट देंगे उसके पहले डायरेक्टर को अप्रूव करना है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड जिन कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है. अगर होल्डिंग सब्सिडरी है तो होल्डिंग कंपनी, द पेरेंट कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर्स फर्स्ट एंड देन द ऑडिट रिपोर्ट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड and then the audit report will be given by the auditor. So the duty of the director here is to approve the annual financial statements कि ये सही है, ऐसा है. To approve and attach board's report. So a report by the board of director contains requisite particulars on the affairs of the company, including director's responsibility statement, is required to be attached with the financial statements after its approval. So जैसे ही financial statements approval हो जाता है, so board report directors को देना है. एक कम्युनिकेशन है ये, दैट इज़ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है. सो ये भी अटैच होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ. एंड डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की डायरेक्टर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी. सब्सिक्वेंटली AGM में अपॉइंट होता है, लेकिन पहला ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Though board report is also a long report, so I am hereby attaching a single sample first page of the board's report for your reference, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स रिपोर्ट कैसा होता है. इफ़ यू हैव नो आइडिया ऑफ इट, इफ़ यू आर स्टडिंग इन स्कूल, एंड जितना आप ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर लोगे ना तो उतना अच्छा रहता है. एंड यू नो उसके बाद इट बिकम्स ईजियर व्हेन द एग्जाम्स कम इन योर क्वेश्चंस. एंड एंड वेन एवर यू अपीयर फॉर योर एग्जाम एंड ये टॉपिक आता है, देन ट्राई टू हाईलाइट एंड अंडरलाइन. हाईलाइट आई डोंट मीन द कलर हाईलाइटिंग, आप पेन से अंडरलाइन करो द की वर्ड्स, एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग गुड मार्क्स, राइट? आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड इफ इट्स so, then do share it with your friends. Thank you and have a good day.